why we take decisions, why decision is important, and decisions, if sometimes our decision is fail, what happened. So guys, decision making is really most important, and on that decisions we achieve success, we get success, we do lots of things, we improve our sixth sense and all and all. If your knowledge, if your especially mind, okay, it's good, and if you uh, do daily meditations and all, so definitely whatever the decisions means, actually how decisions start, how it will come in our thoughts, okay, in our depend on our positivity, depend on our subject of knowledge and everything. So before take decisions we think a lot, we confuse, sometimes we take experts advices, sometimes we ask our friends, our colleagues and all, okay, what to do, how to do, and which one is best for me, okay. And especially it's a really difficult on the time of when you pass your 10th and 12th exam and you want to choose new stream, right? Someone's is already decided to choose science, commerce, arts and whatever, engineering, laws and all. So that decision really change your life if you take good decision. Sometimes the students are want to do some science, but they just choosing art and commerce, and then they realize after 20-30 years ki, oh, I did mistake to choose that stream because I want to become so and so, and we choose because of lack of percentage, or if you are not clear your set take paid exams, and due to that you are not choose that kind of streams. So in management, when you are join any kind of organizations, that time why they are conducting interview, especially on bachelors and freshers. Why? Because they judge you how you react, and your decision power also, because they ask a lot of kind of questions and they judge you, your personality, your way of thinking, your way of answering, what kind of answer you have given and all, okay. So on that basis they select you. So keep in your mind when you talk or when you communicate in front of the interviewer, so be knowledgeable, to study when before giving interview, okay. So, and you know that why a lot of leaders we have seen, how they make leaders, how they may become a good achievement or good post, because of the good communication skill, good decision maker in their uh, assignment whenever they move. Because we मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो स्मार्ट वर्क कम्स from decision making. You decide na before start your work, yes, which one is do, which one is best, which one is given to first priority, right? So that is the process. Actually lot of process are there, because when you are teenage, that time your decisions are different. When you are in school, college, that time you take different kind of decisions, because friends groups are there and you think about uh, with their point of view, what they are saying also, okay. So that's why I am also conduct a lot of activities. So what you think, if any kind of subject, so what you think about that, what
kind of thought comes in your mind. So different kind of process are there. If you are an engineer, so decision makings are depend on that. If you are chartered accountant, so decision making on that point of view. If you are a lawyer, so you are just argue and just proof in front of them. If client says no, you should prove that this wrong thing is a good way, so you should think about it and you prove it, yes, the wrong thing is good way, right? Good is always good, truth is always truth. So if you are a teacher, so you just prepare your students on that way, thinking about their motivational and all things. So lots of way of decision making and process. So we'll say here. Next, have you seen this PPT, decision making process? Yes. Have you seen this PPT? Yes. So decision making process is what it is actually. According to Baker, he said like that efficient decision making involves a series of steps. Which kind of steps? So that require the input of information at different stages. Different kind of stages. सुबह कुछ अलग था, in the middle time कुछ अलग thoughts आ रहे हैं, कुछ अलग decisions ले रहे हैं. In on the time of meeting, someone asks question, that time you confuse what you say, right? So that is also the part of decision making, some kind of information at different stages of the process, as well as a process for feedback also. स्पेशली जो आर्मी लोग होते हैं, जो डिफेंस में होते हैं लोग, उन लोग को डिसीजंस बहुत ही क्रुशियल पार्ट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है. एंड इतना स्ट्रॉन्ग कि दे मतलब वो परवाह नहीं करते कि क्या होने वाला है उनके साथ. ओके, so there is a different kind of process when you join the army or defense or air force. So that time you train, okay, they will provide you a training, and it's a really tough training. So it's a management, you are working in management. So it's, if you work hard, if you learn all subjects of management, definitely you have an idea how to take decision in your business, in your job, wherever you are. Okay, so here Becker is saying like that ki efficient decision making involves a series of steps that require the input of information at different stages of the process, as well as a process for feedback. Actually जब हम कोई काम करते हैं, तो दैट टाइम वी डिसाइड कि यस ये काम आज होना चाहिए, और उसी हिसाब से आप सोचते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आज सुबह मैं ये काम करूंगा, इसमें जो जो क्राइटेरिया है, जो जो भी मुझे चाहिए वो मैं कलेक्ट करूंगा, एंड देन विल कंप्लीट इट. बट एंड दैट इज द प्रोसेस. पहले फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, और वो प्रोसेस कंप्लीट होगा. फिर स्टेज वाइज होता है ना, स्टेप वाइज. आपको अगर आपने सोच लिया कि मुझे एकदम 7वें आसमान में जाना है ना, मुझे प्लेन चलाना है, तो प्लेन चलाने के लिए आपको पहले क्या होगा, एयरफोर्स ज्वाइन करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा, है ना. देन उसके बाद जो भी उनका प्रोसेस है वो सब लर्न करने के बाद ही आप प्लेन उड़ा पाएंगे. एकदम आप जाके ऐसा तो नहीं है, 2 व्हीलर बस साइकिल है, भाई साइकिल भी चलाने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. आफ्टर दैट वी लर्न इट. सो ये सारे जो इन्वॉल्व है, ये जो स्टेप्स होते हैं ना डिसीजंस में, सो वो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कंप्लीट कर ली, सो डेफिनेटली आप अचीव करते हैं. एंड दैट टाइम यू सेड यस, मैंने जो डिसीजन लिया था, वॉट एवर आई थिंकिंग, वॉट एवर आई डिसाइड, यस डन. सो दैट इज द प्रोसेस. फीडबैक है ना. आज आपने चलाया प्लेन, मतलब आप सीख गए हो, अभी आपको बोल दिया गया कि आपको प्लेन चलाना है, तो आपने आज पहले दिन ट्राई किया, मजा आया, अच्छा लगा आपको. बट आपने सोचा कि नहीं, आज फर्स्ट डे है तो मैं इतना फास्ट वे में नहीं जा सकता. तो आप स्लोली 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 उसे स्टेप बाय स्टेप आपका फीडबैक दिया जाएगा कि यस ही इज अ गुड कंट्रोलर. मतलब उसमें कंट्रोल, क्योंकि प्लेन कोई भी व्हीकल चलाने के लिए आप में पेशेंस ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है. अगर आप में कंट्रोल ही नहीं है, आप तो बस उड़ाते उड़ाते ही जाओगे, राइट. सो कंट्रोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और ये आपका चेक किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि यस हाउ वाज ही, ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा रहा.
और वो एक्सपीरियंस के बेस पे आप आज का अच्छा कल का अच्छा ऐसे करते करते आप एक्सपर्ट बन जाते हैं. सो दैट इज द प्रोसेस फॉर फीडबैक. अगर आपका फीडबैक डे बाय डे गुड आता है, so definitely you are expert in that field or you are know of that field. Psychologically अगर हम देखें तो decision making is regarded as the cognitive process and resulting in the selection of belief or a course of action among several alternatives possibilities. हाँ, डिपेंड करता है. जैसे मैंने उस दिन डॉक्टर एंड पेशेंट्स का एग्जाम्पल दिया था कि ऑन दैट टाइम वो जो डिसीजंस मेकिंग होता है वो डिफरेंट. सो एवरी फील्ड, हर फील्ड में डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट है, बट द वे ऑफ थिंकिंग, किस तरह से आप सोचते हैं, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका इम्पैक्ट, उसके रिजल्ट्स, उसके आउटपुट पॉजिटिव ही आएंगे. गॉट इट. सो बिलीव अ कोर्स ऑफ एक्शन, डिपेंड करता है कि एक्शन क्या लेना है. जैसे आर्मी लोगों ने बोल दिया, सामने से लीडर ने बोल दिया शूट फायर, धर 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 फायर. उन्हें बोल दिया स्टॉप स्टॉप. डॉक्टर और पेशेंट के बारे में वैसा नहीं होता. उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऑपरेट करना ही है, बट डॉक्टर क्या बोलता है, ठीक है पहले फॉर्म साइन करो, अगर ऑपरेशन के टाइम कुछ हो गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑल आर ऑपरेटेड, बट फिर भी वो फॉर्मेलिटी करते ही है. दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द फीडबैक. राइट, got it. What actually the process of decision making. So different level पे आप कहीं भी जाओगे, different level पे different kind of decisions you have to make. So यहाँ से आपको बहुत strong रहना है, always fresh. प्रैक्टिस करिए अभी से. आप अभी तो आप यंग एज के हो, अभी से आप थोड़ा थोड़ा 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का मेडिटेशन करिए. तो मेडिटेशन से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी. एटलीस्ट पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी रहेंगी आपकी. कोई भी डिसीजन आप बहुत इजीली फास्ट ले लिया करेंगे. एवरी टाइम जब भी आप बहुत स्ट्रेस फील करते हो, सो दैट टाइम यू जस्ट सीट अलोन विथ पीस and just 5 minutes you close your eyes and think a good, means good thoughts comes. Try to think about good thoughts. So it's really help you to make a good decision, not only individual, only corporate and others decisions also. Next, have you seen this PPT? So what does decision making really mean? है ना, what does it is? You are a good person and you are a familiar, you are main in your family and all, so lot of responsibilities on your shoulders. So that time what does decision making really mean? Sometimes, right? हमने आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, आप लोगों ने रामायण भी देखा होगा. दैट टाइम दे आर थिंकिंग एंड दे विल टेक अ डिसीजन. यस मैं करूंगा. यस, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. ऑन द टाइम ऑफ वार, है ना, वार के टाइम पे जो अभी ये पैंडेमिक में जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए सबके लिए, वॉट एवर, सो दैट काइंड ऑफ इट्स डिपेंड. इट्स अ बिग प्रोसेस. ऐसे एक दिन में थोड़ी मोदी जी ने बोला कि नहीं सब एक दिन में हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. वी जस्ट ट्राई फ्रॉम लास्ट 2.5 years. हम ट्राई कर रहे हैं, अभी भी सभी जगह वो सब चल ही रहा है. तो दैट इज डिपेंड्स. ओके, now we have seen next PPT, that is decision making process. Okay, so it's a definition and it is like a process of making a choice between a numbers of options and committing to a future course of action. सही है. आज का डिसीजन अभी देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन देते हैं, है ना, अभी डिसीजन तो बहुत सारे होते हैं. जैसे आप आप आपका जन्म हुआ तो आपका नाम क्या रखना है, फिर वो डिसाइड किया जाता है. फिर आपका एजुकेशन कैसे करना है, वो भी डिसीजंस लेते हैं पेरेंट्स. देन आपको आपके एनवायरनमेंट के बारे में, आपको किस तरह का कल्चर मिलना चाहिए, है ना, वॉट एवर द डिसीजंस दे टेक आपके बारे में. सो वो कैसे होते हैं, सक्सेस होते हैं, और एक दिन आप बहुत अच्छे स्टेप
स्टेज पे होते हो, तो बिकॉज ऑफ, एंड वी जस्ट गिव अ क्रेडिट ऑफ आवर पेरेंट्स ऑलवेज कि यस बिकॉज ऑफ वी आई एम हियर बिकॉज ऑफ देम. So good decision always make you good, feel you good. So that is the process ki making a choice between a numbers of options and committing to a future course of action. अभी ये जो बोला है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लाइक दैट कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने सोच लिया कि अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और आपके पास आपने एमबीए कर लिया, यू हैव गुड जॉब एंड you get good position in organization. So that time you decide ki yes, now we have thinking about our investments, and you decided ki you want to buy a house or buy a car, whatever. So you decide ki yes, now you have 50,000 salary or 60,000 salary, whatever. So you decide ki yes, ये आज मैं करूंगा तो आने वाले 20 साल में या 15 साल में ये हो जाएगा, है ना. सो दैट इज द मतलब आज आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये करना है, एंड आफ्टर 20 years और 15 years वो आपका घर हो जाएगा या आपकी गाड़ी हो जाएगी. गाड़ी के लिए तो इतना मिलता नहीं है, 5 या 7 साल का ही लोन मिलता है. सो घर के लिए मिलता है 15 और 20 years का. तो आज से अगर आप ये डिसाइड करोगे कि यस you want to buy something or you want to invest something for your future or your kids future or your family members future, so definitely, so that is the different kind of process. but उसके लिए आपको हर महीने इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा so that after 20 years you will get that money or your um, kids good education, whatever the plan you have decided, it will success. Next, here is the steps in decision making process. Yeah, Mahesh. Yes, Mahesh, just speak up now. Mahesh said like that, I am unable to take my financial decision. Could you please let me know what can I do or what is the good practice for same? Okay. Definitely, I will tell you, Mahesh, after lectures or when you will be free, then we'll discuss about it. Okay. Sure, So, ma'am. so lot of steps in decision making process, okay, on the same time. Okay, if you are 20 years or 21st years old, so that time if you decide, and that from that time if you invest your money in good uh, way, so definitely after 20 years means when you are in 40, 45 or 50, so you don't do anything, you have a lot of money, you have a own home and everything you have, okay, your and your family lives, your kids lives going very very good because you plan on the age of 2021. Got it. So nowadays markets are open for investment, lot of, but you need to think where you invest. Okay, lot of people I have seen ki they invested here and there and they lost their monies, and someone ditched them, some court matters involved, a lot of things. So think carefully. Okay, so that is the, here is the steps of decision making. Identify the problem. सबसे पहले, okay, when you, if you have some, if you want to do something, right? So Ma'am, you are not audible.
हेलो 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 Yes. Am I audible? यस यस मैम Actually, I don't know what happened. There is a loose connection. So that is the step. So that time you just decide ki what kind of problem they face. Okay, as a manager, you assign 5 people tasks and you just give him ki within a week these tasks had been done, but they are not doing. They are not focused on their work. So you just thinking about ki what is the problem, why they are not completing their work. You just call in meeting and ask everyone, every 5 members, ki what is the problem, why you not completed your task. So someone says a technical problem is there, someone says ki, sir, this file is not got me. So different kind of reasons they have given. So that time you identify the problem, you discuss with them, and you help them ki how solve the problem, and how after that, if you decided ki no, within a 2 days you need to complete this work, so definitely they will complete it. So that is actually the decision making. Means you call them, you ask everyone, you understand their problems, and after that you provide everything them, and after providing everything they will fulfill these tasks only 2 days. Got it? So means बहुत organizations में क्या होता है कि bombarding होता है, करो करो करो, मुझे चाहिए चाहिए, बट सामने वाले को समझ में नहीं आता क्या चाहिए इसको, एक्चुअली मैं करूँ क्या ये भी समझ में नहीं आता है. सो दैट टाइम आपको समझना है कि इसे एग्जैक्ट क्या चाहिए, कैसा चाहिए. हाँ, शुरू में तो हम सारे लर्नर ही है, मिस्टेक तो होंगी. हम करके दे रहे, उसे पसंद नहीं आ रहा, वो बोल रहा है ऐसा नहीं चाहिए मुझे, तुझे समझता नहीं क्या, ऐसा वैसा वो बोल रहा है, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या चाहिए, है ना. तो ऐसे टाइम में आपको घबराना नहीं, उसे पूछना है कि सर सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताइए कैसा चाहिए, मैं आपको वैसा दूंगा या वैसा दूंगी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो मैनेजर है, ही हैज अ गुड एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए हो, आपके पास तो जस्ट अभी आई है डिग्री, है ना. तो पोलाइटली हम्बली अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली द पर्सन हेल्प यू. अगर आप भी उसे इगोइस्टिक और रूडली बात करेंगे तो बोलेगा नहीं देता, कर ले जो करना है. गॉट इट? सो दैट इज, एंड यू लर्न कि वो किस तरह से डिसीजन ले रहा है, क्या बोल रहा है ना. सो दैट इज रियली रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइट नाउ, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, वही जो मैंने अभी बताया कि उसको डायग्नोस करो, क्या है एग्जैक्टली सोचो और कैसे वो सॉर्ट आउट होगा. राइट, कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा वो समझो. फॉर एग्जांपल जैसे सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनका उनका काम होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है या जहाँ पे भी उनको वर्क करना है, वो एरिया कैसा चाहिए, पूरा क्लियर चाहिए. क्लियर मींस एनएटीपी क्लियर चाहिए, अप्रूवल्स चाहिए उसके लिए अथॉरिटीज के, है ना. जैसे अगर उन्होंने अभी डिसाइड किया है मोदी गवर्नमेंट ने कि एवरी डे 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, उतना रोड उनको बनाना है, बट वो रोड का जो मैप है, उसका डिजाइन है, उसका अप्रूवल है, वो आपके पास है क्या. सारी चीजें होगी तभी तो आप उस पे काम करोगे. अगर आपको दे दिया ये करना है, आपने लेबर लगा लिए, सब कर दिया, दूसरे दिन जब वेरिफिकेशन हुआ, ऑडिट हुआ, तो पता चला कि आपको दिया था 3 मीटर का, आपने बनाया 5 मीटर का, या फिर उसमें जो भी कंटेंट है वो कुछ कम लग रहे हैं, फिनिशिंग नहीं है. गॉट इट? सो पहले तो पूरा डिजाइन उनको समझना होता है कि यस वैसा ही बनाना है. बार बार बोलते हैं कि सेम बनाना है, एज इट इज, ये कंटेंट है, ये डायग्राम है, ये इसका स्ट्रक्चर है, सेम ही ऐसा बनाना है. सो ऑलवेज डायग्नोसिस द प्रॉब्लम, मीन समझ के ही उसको सॉर्ट आउट करो, एंड स्टेप बाय स्टेप करो एवरीथिंग, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. जैसे आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मार्टिन ल्यूथर का पूरा बुक पढ़ना है. मैंने डिसाइड किया, अभी मैंने 6 बजे डिसाइड किया कि आज रात भर जाग के मुझे वो बुक पढ़ना ही है. ओके,
बट व्हाट हैपेंड, मैंने डिसाइड किया, ये मेरा प्लान था, है ना, डिसाइड करने का मेरा प्लान था कि आज मुझे करना है मार्टिन किंग लूथर का, मुझे बुक पढ़ना है। मैं मार्केट से लेके आई, सब है मेरे पास, बट क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, 1 घंटा भी नहीं होता है, किसी का फोन आ जाता है या मुझे कहीं और काम आ जाता है, मैं कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, रह गया। तो ऐसा अगर होगा तो 11 बजे अगर मुझे नींद आने लग गई बहुत, तो मैं जो भी पढ़ूंगी वो मेरे दिमाग में जाएगा ही नहीं ना। मतलब सिर्फ पढ़ना है, मतलब पेज पढ़ना है नहीं ना, मुझे पूरी उसके ऑटोबायोग्राफी, वॉट एवर द बुक्स आर एक्चुअली उसने लिखा है, वो मुझे सारा वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, समझना है। सो दैट इज टू डिफरेंट थिंग। पढ़ना है मतलब सिर्फ उसके पन्ने नहीं पढ़ने हैं, उसका टाइटल या उसके अंदर क्या कंटेंट है ना, वो नहीं। तो मुझे पूरी बुक एज यूजुअल विथ अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसने क्या क्या कहा, उसने क्या क्या वर्ड्स वहां पे लिखे, तो वो बुक एक दिन में मेरा होगा ही, फ्रैंकली स्पीकिंग। टाइम लगेगा, मैं एवरीडे डिसाइड करूंगी। सबसे पहला मेरा प्लानिंग क्या होना चाहिए, डिसीजन क्या होना चाहिए कि मुझे रोज 5 पेजेस पढ़ने हैं या मुझे रोज 1 पेज पढ़ना है। कोई भी बुक एक दिन में समझ में नहीं आती या 1 हफ्ते में भी समझ में नहीं आती। अगर उस बुक को पढ़ना है, समझना है, तो आपको उस बुक को कम से कम 3 टाइम तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो इस टाइप के कभी कभी हम डिसीजन लेते ना, मैं ये कर लूंगा या इस तरह से कर लूंगा, कभी होगा ही नहीं। अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डिसीजन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेंगे, तो डेफिनेटली, हाँ प्रोसेस स्लो है, यस, स्टार्टिंग में हम स्लो लर्नर होते हैं बिकॉज ऑफ नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। अगर आप स्लोली स्लोली जाओगे, मतलब सीखते सीखते जाओगे, तो डेफिनेटली आपका डिसीजन भी स्ट्रांग होगा और आपका जो वे ऑफ वर्किंग है ना, काम करने का जो तरीका बोलते हैं, उसमें भी इम्प्रूव होगा। सो दैट इज द गुड डिसीजन, यस, कि यू वांट टू बिकम समथिंग लाइक दैट, है ना। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमें अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट, ठीक है, आपने अच्छा अचीव कर लिया, आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया और आपको अच्छा प्लेसमेंट भी मिल गया, मान लीजिए कि अच्छी कंपनी में आपको 40 45 प्लस 50 का मिल गया, एज अ मैनेजर मिल गया। चलो, लेकिन आपको वर्क ही नहीं पता है कि मैनेजर लेवल का क्या होता है, प्रोसेस ही नहीं पता। एज अ फ्रेशर, फ्रेशर होते हुए आपको मैनेजर बन गए, तो आप सक्सेस होंगे क्या? क्योंकि आपको बेसिक वे ऑफ वर्क ही नहीं पता, एक्सेल्स में क्या काम होता है, कैसे करता है, कैसे शिफ्ट, तो वो सीखने के लिए आपको 1 साल लग जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि आप अपना एफर्ट कितना लेते हो। इसी अगर आप ऐसे में रहे कि यार देखो मुझे फ्रेशर होते हुए भी इतना अच्छा जॉब मिल गया, तो वो तो कंपनी वाले बोलेंगे यार इसमें तो गट्स ही नहीं है, 6 महीने में ही वो आपको भगा देंगे, है ना। तो ऑलवेज थिंक, ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। सोचने का भी तरीका जो है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जैसे आप सोचते हो कि आज ये पेपर है तो मैं ये पेपर का करूंगा, दूसरा पेपर का, तीसरा, मतलब 1 बाय 1 आप कंप्लीट करते हो ना, सेम चीजें 1 बाय 1 ही करना है। सो डिस्कवर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, यस, हमेशा ऑल्टरनेटिव एक्शंस ले, सेम एक्शंस के साथ काम कभी नहीं होगा, है ना। जैसे आज आपने बोला आज काम क्यों नहीं हुआ, चिढ़ के बोला तो वो करेंगे नहीं, अरे नहीं करते जा। लेकिन आपने बोला एज अ गुड ह्यूमन बीइंग कि आज काम क्यों नहीं हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो सामने वाला बोलेंगे सर ये टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसकी वजह से नहीं हुआ है, शाम तक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कल होगा, इस तरह से। सो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम की है तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम है क्या उसका, है ना। सो ऑलवेज थिंकिंग कि ये, अगर आपको 5 मिनट में वो काम करना है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे अभी हम लोग एवरीडे सभी को हैबिट है चाय, कॉफी और ग्रीन टी, लेमन टी, ऑल एंड ऑल, ओके। सो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कभी हम ग्रीन टी लेते हैं, कभी हम लेमन टी लेते हैं, कभी हम ब्लैक टी लेते हैं। सो ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, डिसीजंस में भी ऑल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट और डॉक्टर है, डॉक्टर ने बोल दिया आपको कि भाई ये पेशेंट जो है इसके पास समय कम है, अगर आपने तुरंत डिसीजन नहीं लिया तो ये जा सकता है। सो दैट टाइम आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं वो ही ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर बंदा होगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए, हम कल बताते हैं, है ना। तो ऑल्टरनेटिव डिसीजंस जो होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन अगर लेना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा भी सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत, और हमेशा, अभी तो सभी जगह पता है, आप
अच्छे डॉक्टर्स की ही सलाह लीजिए, लेकिन ऑलरेडी फिर भी एक दो डॉक्टर से तो पूछना बनता ही है। आप किसी भी नए डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट ना करे तो बेटर है ना। अगर आपका फैमिली डॉक्टर है तो गुड एंड वेल, नो इशू। बट हमने देखा है पैंडेमिक में कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ है ना। तो डिसीजंस लेते वक्त बहुत सोच समझ के, अगर ये नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे आप लोग अभी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो सभी को जॉब मिलेगा क्या, सभी को प्लेस होगा क्या, और सेम सभी को मैनेज, फिनांस का अलग है, एचआर का अलग है, ऑल क्राइटेरियाज आते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे सब क्राइटेरियाज है। फाइनेंस का लिया तो आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन नहीं जाओगे, कोई किसी को डाटा मिलेगा, किसी को एनालिसिस का मिलेगा, किसी को बैंकिंग में मिलेगा, है ना। तो ये ऑप्शंस आपको ऑल्टरनेटिव चूज करके, अगर मुझे बैंकिंग में नहीं मिला तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, अगर मुझे एनालिसिस करना नहीं आया तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एंड यू हैव टू चूज इट कि कहाँ करना है। अगर आपको 4-5 कंपनीज के ऑफर्स आ गए, सो दैट टाइम यू नीड टू चूज कि वेयर एवर यू गो, विच फर्म यू नीड टू चूज। सो ऑप्शंस, ऑलवेज ऑप्शंस होने चाहिए, और उससे चूज करने के लिए आपका आईक्यू बेस्ट होना चाहिए कि यस दिस वन इज गुड फॉर मी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने टीचर्स से पूछिए, आपने एक्सपर्ट से पूछिए, राइट। सो गुड डिसीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है वो हमारे लाइफ का। अगर उस वक्त हमने सही चूज किया तो डेफिनेटली वी नेवर फील रिग्रेट दैट काइंड ऑफ डिसीजंस। ओके, नाउ इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स। ऑलवेज इवेल्युएट करिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा। वन ऑफ स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाट his or her name actually, but when he got a job na, that time she asked me, uh, in your batch, I don't know, yes, your batch or second year batch, I don't know. So she asked me, she has three job offer letter, two or three. So she or he, I don't know, but asked me ki ma'am, I received appointment letter for both sides, so which one is best? I'm too much confused कि मैं कहाँ जाऊँ, किसे चूज करूँ। सो आई आस्क हर कि मुझे कंपनी का नाम बताइए, वहां पे क्या काम है। ऐसे टाइम में आपने सोचना है कि वर्क प्रोफाइल क्या है, राइट। अगर आपका वर्क प्रोफाइल आपको पसंद है, मतलब अगर आपने एक कंपनी, वहां पे जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, वो आप कर सकते हो तो आप उसे चुनिए। अदर अभी क्या होता है ना, बच्चों को प्लेस के वक्त बहुत सारी जगह से ऑफर्स आते हैं या इधर उधर, तो काम क्या है ये किसी को पता नहीं होता है, सबको लगता है हम ये कर लेंगे, बट डिफरेंट रहता है ना। एचआर को अगर फाइनेंस का मिल गया वो तो गया काम से, कर लेगा, लेकिन उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फाइनेंस के पीपल को फाइनेंस का मिल गया तो वो तो बहुत, आईटी के पीपल को आईटी का मिल गया तो वो तो खुश हो जाएगा। So job profile is most important. So I told her that time कि yes, your background is finance, so you if अगर आप ये चूज करोगे तो आपका लाइफ सेटल होगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है वो फाइनेंस देके, और उन सबका नॉलेज भी अच्छा है। एंड ऑल्सो हमें नॉलेज भी जज करना चाहिए कि हमें किस फील्ड में अच्छा नॉलेज है, राइट। सो ऑन दैट बेसिस पे ऑल्टरनेटिव हमारे जो डिसीजंस है वो इवेल्युएट करते आना चाहिए हमें कि यस ये नहीं ये। और आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, बहुत सारे, बट यू नीड टू चूज करेक्ट ऑप्शन। नाउ सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। जैसे हम लोग अभी आजकल पैंडेमिक में सब एमसीक्यूज पैटर्न है, तो आपको तो अभी आदत हो गई है कि विच वन इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब इसका क्या है ना, सब आंसर क्या है। all five options are there and you choose only single option. So अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, सो डेफिनेटली यू चूज बेस्ट। पता ही नहीं है तो आप कुछ भी लगा दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सो डिसीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप एक्शन ना। ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, अभी आपने सोच लिया कि मुझे इन्वेस्ट करना है, डिसाइड भी कर लिया कि एवरी मंथ 5,000 10,000 का मैं यहाँ पे करूंगा इन्वेस्टमेंट, राइट। तो फिर क्या होगा कि वो एवरी मंथ में आपको उसे पे करना ही है ना। इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द एक्शंस, व्हाट एवर द इम्प्लीमेंट फॉलो द एक्शन व्हाट एवर। सो
क्या होगा, वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एंड वो 10 साल में भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। सो आपने वहां पे कंट्रोल भी रखना है कि नहीं, ये नहीं वो, और उसे इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो कि नहीं करना है। अभी एक बार कर लिया ना, बस हो गया। अभी 20 साल तक आपको टेंशन, आफ्टर 20 years जब मिलेगा तब देखेंगे, राइट? सो implementing and follow up the action is help or help us to grow up, to achieve whatever you decided. What it, किसी को कोई पूछना है इसमें, steps of decision making processing में? Next, have you seen this PPT? Identify the problems. अभी जो हमने स्टेप देखा ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज एक्चुअली कि this stage involves understanding with absolute clarity what the issues and what type of decisions is going to be made, right? So there is the steps like that, make sure it's a problem and not just a symptom of the problem. Okay, symptoms नहीं देखने हैं, जैसे डॉक्टर्स हमें देखता है ना, चेक करते हो कि क्या है, अच्छा मतलब सर्दी खांसी ये तो नॉर्मल है, वायरल है, या फिर अगर कुछ है तो सिम्टम्स को ढूंढिए कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैनेजमेंट में भी अगर आप कोई देख रहे हैं तो अच्छा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हुआ है ना, या फिर व्हाट वी से, और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से काम कंप्लीट नहीं होता है, कुछ फाइल्स नहीं होती, कुछ डाटा नहीं होता प्रॉपर, राइट? तो वो भी इश्यू होता है। नाउ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन इज सब्जेक्टिव, मतलब वही प्रॉब्लम है या कहीं और का है, रिगार्डिंग कहीं और से डेटा कलेक्ट करना है क्या, तभी वो काम होगा क्या, ये भी आपको सोचना है। नाउ डिस्क्रिपेंसीज कैन बी फाउंड बाय कंपाउंडिंग करंट रिजल्ट्स विथ सम स्टैंडर्ड्स। ओके, सो उसका ये भी देखिए, आईक्यू भी देखिए कि जो भी कंपेयरिंग हो रहा है उसके साथ डाटा मैच कर रहे हैं, या जो भी आपके पास एक्सेल शीट्स है, वर्ड शीट्स है, या जो भी प्रॉब्लम है वो सही है कि नहीं, वो भी एक बार चेक करिए। आप जिस पे काम कर रहे हो, जो भी डाटा पे काम कर रहे हो, वो डाटा सही है कि नहीं। देन मैनेजर्स आरंट लाइक टू कैरेक्टराइज a discrepancy as a problem, they and they don't have authority, information or other resources need to action it. So जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको टास्क दे देते हैं, whatever the task they have, and वो बोलते हैं कि आप खुद करो। तो you have to involve it, found the problems and sort it out. अगर आपको लगता है कि ये किसी वजह से नहीं हो पा रहा है और आप उसे नहीं कर पा रहे हो, देन क्लियरली रिपोर्ट देम कि यस दैट इज द प्रॉब्लम और इसीलिए ये काम नहीं हो रहा है ना। तो ऑलवेज प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के साथ ही हमें काम करना आना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम में हमने देखा कि जैसे कि दिस इज नेसेसरी टू classify the problem in order to know who must take the decision and who must to be inform about the decision taken। किसने ये काम दिया है और किसके थ्रू ये काम होने वाला है या कैसे हमें करना है। So explore the issues from different perspectives using the diverse expertise or exercise on your decision making team। हमें टीम के साथ काम करना है तो टीम का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। कौन से टीम में कौन बंदा क्या काम कर रहा है, उसका काम कैसा है, उसको एक्सप्लोर करो, उसको देखो। आस्क व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर एंड हाउ क्वेश्चन। सो इशू इज फुल्ली रिवील्ड। सारे प्रॉब्लम्स को देखो, क्यों हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करेगा, कैसा करेगा, कितने टाइम में करेगा। जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी हमारे सामने होने चाहिए। बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो ऑलवेज क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, ऐसा प्रॉब्लम है। बट डोंट क्रिटिसाइज देम, जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन। नाउ रिफाइन द डिसीजन
statement based on this analysis. Analysis भी करिए. कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसे बड़ा प्रॉब्लम भी होता है, तो उसे क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है. सॉरी. डिस्कवर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ऑलवेज हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि जैसे हियर यू डू नॉट हैव द restrict yourself to think about the very obvious option, so rather you can use your creative skills and come out with alternatives that may look a little irrelevant. आप अपना भी यूज कर सकते हो कि किस तरह से मैं इसे काम करूंगा तो ये जल्दी फिनिश्ड होगा, है ना. सो यू हैव टू यूज योर ओन स्किल टू फुलफिल योर टास्क. अगर आपको लगता है कि आप ये वैसे करेंगे तो ये जल्दी होगा, देन यूज. ओके, don't follow the rules and regulation if the task is too urgent. Now you would also have to do adequate research to come up with the necessary facts that would add in solving the problems. Yes, आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे और पढ़ना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, सो यू जस्ट रिसर्च इट, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस, ये जो काम्स होते हैं ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं और उसके लिए आपका स्टडी बहुत हाई लेवल का चाहिए होता है. नो इश्यू, आप लर्नर है, आपको ये नया काम मिला है तो आप उससे बहुत कुछ सीखोगे. पहले तो ये सोचिए कि ये काम करते अगर मुझे आ गया तो मैं कितना कुछ सीखूंगा, राइट. सो जब आप ये काम करते हो तो कितने सारे ट्रेनिंग्स, कितने सारे मतलब उसके ऑप्शंस है, वो सारे आप लर्न करोगे, सीखोगे, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी ये काम आपको मिलेगा तो आप उसे विद इन अ मिनट में या विद इन 1 आवर में कंप्लीट करोगे. सो ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशंस, ऑलवेज रिसर्च, ऑलवेज रीड हाउ टू सॉल्व इट. अभी तो सारी चीजें अवेलेबल है तो आप तो कोई भी काम इजीली कर सकते हो. इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स. सो फाइंडिंग आउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑप्शन. आप सोचिए कि अगर यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ या अगर मैं ये काम करता हूँ तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव क्या इम्पैक्ट होंगे, ये भी सोचना है. फिल्टर आउट द ऑप्शंस दैट यू थिंक आर इम्पॉसिबल और डू नॉट सर्व योर पर्पस. ठीक है, ये भी सोचिए कि इससे आपका पर्पस सॉल्व होगा या नहीं. अगर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये काम क्यों करें. मतलब बहुत बार हम लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, ऐसे कुछ काम करते रहते हैं जिसका कोई ऑप्शन नहीं होता या जो कोई मतलब द वर्क इज नॉट रिलेवेंट, फिर भी हम उसे करते हैं और फिर पता चलता है कि वो हमने तो फालतू टाइम वेस्ट कर दिया. तो ऐसे काम मत करिए जहां से आपको कुछ सीखने को मिले. जैसे देखिए स्टडी करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई रट के करता है, कोई पढ़ के करता है, किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है तो लर्निंग स्किल अच्छा होता है, कोई डायग्राम बना के पढ़ता है. यस, मैंने देखा है क्योंकि जितने भी आईएएस ऑफिसर है, जितने भी जज है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएसीएस जो भी होते हैं ना, वो इतने सारे नोट्स बनाते हैं पढ़ते वक्त, इतने सारे. और नॉट ओनली वन टाइम, 2, 2, 3, 3, 4 टाइम दे आर मेकिंग नोट्स एंड ऑन द बेसिस दे अचीव देयर सीएसीएस एग्जाम्स, राइट. यस, एनीवन वांट टू से समथिंग. 21 मिनिटं झोपले, उठले Hello? लवकर. येस, मला किती वेळचं झोप नाही तर मी केव्हा झोपी गेले असते. हु इज देयर. कोणाला झोप येत आहे. जस्ट अनम्यूट. Okay. So there is the evaluate alternatives, and the last option is rating each option with a numerical digit would also help in the filtration process. So जो भी ऑप्शन आप चूज करते हो डिसीजन लेते वक्त और वो अगर सक्सेस हो जाता है
तो आपको उसका आउटपुट मिलता है, गुड आउटपुट। फिल्टरेशन, जैसे बहुत बड़ी एक्सेल शीट है, एचआर में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत बड़ा एक्सेल बनाना होता है, सैलरी का होता है बहुत, सो उसमें ऑप्शंस नहीं होते, उनको सारा जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट वे में पुट करना होता है ताकि उसका रिजल्ट फास्ट मिले। अगर आपने थोड़ा भी इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया उसमें तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहो चाहे कोई, मतलब बहुत ही क्रिटिकल टास्क होता है वो भी, देन उसका एनालिसिस। बट अगर आपका डाटा सही है, आपने सारी चीजें एज पर रूल्स और उसका जो फॉर्मूला है उस हिसाब से अगर आपने पुट किए तो आपको रिजल्ट एकदम पॉजिटिव परफेक्ट मिलेगा। और अगर नहीं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। सो इवेल्युएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, best alternatives, how we choose best alternatives. So best alternatives, like selecting alternative which seems to be best suited to you, and choice of the best alternative is the most critical point in decision making. हमें तो जैसे आप लोग शॉपिंग वगैरह जाते होंगे, अभी तो ठीक है आप लोग इसी से डिजिटल ही सारी चीजें परचेस करते हैं, बट अगर हम ऐसे शॉपिंग, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि ना इतने कंफ्यूज, ये दिखाओ वो दिखाओ, बहुत सारी चीजें दुकानदार को बोलते हैं, शॉपकीपर को बोलते हैं ये दिखाओ, और लेते कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे आर कंफ्यूज, दे डोंट चूज अ परफेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर देम। सो दैट इज वेरी बैड थिंग। डोंट बी क्रिटिकल, यू जस्ट चूज, जो फर्स्ट यू डिसाइड कि आपको क्या लेना है, आपका वहां पे टाइम सेव करना है, आपको वहां पे जो भी चीज है आपको पहले माइंड में सोचना है क्या लेना है और उसी पे करिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये भी चाहिए वो भी चाहिए इस तरह से, सो इट्स रियली क्रिटिकल। ऐसा ऐसी चॉइस मत रखिए, ऑलवेज पहले थिंक, डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए और वहां जाके वही चीज देखिए। हाँ भले उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बहुत सारे, है ना, तो उसमें से आपको विच वन इज बेस्ट, वहां पे आप सोचिए, वहां पे आप अपना आईक्यू ये करिए, स्पॉइल करिए, बट अननेसेसरी चीजों पे मत करिए। सो लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स देयर, बट you choose which one is the best. Next, implementing and follow up action. जो भी आप डिसाइड करते हो उसे आप इम्प्लीमेंट करिए, मतलब सॉल्व करिए, ऑलवेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, सो डिसीजन एंड इवैल्यूएशंस whether or not it has solved the need you identified. ओके, सो हमने देखा स्टेप 1 में किस तरह से हमें टाइम पीरियड, किस तरह से टाइम बाउंडिंग को ध्यान में रखना है, और कोई भी टारगेट, कोई भी वर्क, वॉट एवर द task assign your boss and superior, so you would submit on time or before time. And if decision has not resolved the identified need, you may repeat certain steps of process in order to make a new decision, right? So always you have an options, you choose it, you have to use your own skills to solve any kind of problem. So problems है तो decisions मतलब solutions भी आपके पास है। ओके, एंड एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन, एवरी, कितना भी क्रिटिकल हो, बट इसके लिए आपको अपना आईक्यू, अपना जो डिसीजन पावर है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है कि गैदर मोर डिटेल्ड और समव्हाट डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डिस्कवर एडिशनल अल्टरनेटिव्स ऑन व्हिच टू बेस योर डिसीजन। जैसे एग्जाम्स में अभी एमसीक्यूज होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, पढ़ जो बंदा पढ़ के जाएगा वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो तुरंत फटाफट फटाफट टिक करेगा, यस दिस क्वेश्चन हैज दिस आंसर, दिस क्वेश्चन हैज दिस। सो बहुत सारी चीजें है ना, बट जो बंदा पढ़ के ही नहीं जाएगा वो तो कंफ्यूज ही होगा, वो बोलेगा अरे ये मारू कि ये मारू, उसी में वो 1 घंटा 15 मिनट उसी में टाइम वेस्ट कर देगा, वो चूज ही नहीं कर पाएगा या तो इधर उधर देखेगा, है ना। सो दैट इज अ बैड मैनर। सो
स्टडी योर सेल्फ, ओन डिसीजन लेने की अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट, so this is the summary of decision making process which we have seen here. One second, sorry. So it's happened lot of time, right? कि हम लोग कभी कभी ऐसे डिसीजन लेते हैं कि बाद में हमें रिग्रेट फील होता है कि ओ तो अपने आप को ऐसा कम भी मत समझिए, होती है गलतियां तो सभी से होती है। सो पहला जो डिसीजन होता है, ऑलवेज द इशू, वॉट एवर एक्चुअल द इशू, उसे समझो कि क्या है इशू, राइट? अगर इशू आपको समझ में आ गया तो डिसीजन लेने में इजी होगा। और हम अब आप अभी टीचर हो या जो भी है, मतलब नहीं इतना, अभी भी हमें अदर्स पीपल की, अपने पेरेंट्स की, अपने कलीग्स की हेल्प चाहिए होती है डिसीजंस में, और लेनी भी चाहिए, because it's a good thing. Sometimes we are not taking every kind of decisions, and that is a good discussions, sharing, it's a good communications. So it improve your decision process, it improve your IQ level, है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि आज भी हम पूछ के ही करते हैं। So that is, और उसका पीछे क्योंकि रीजन क्या है, हम लोगों को समझ भी नहीं आता कि क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है, इज द इशू। हमें प्रॉब्लम समझ के उसको एनालिसिस करना है कि उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 व्हीलर चलाते हो, तो 4 व्हीलर अगर खराब हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो उसका आपको नहीं समझेगा, बिकॉज यू आर नॉट अ मैकेनिक। उसे आपको मैकेनिक के पास से लेके जाना पड़ेगा, जब वो चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम में है, राइट? सो एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है वो एक्सपर्ट ही बताएगा उस चीज का। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपके पास सारी फाइल गई, तो आप एक्सपर्ट, तो आप तुरंत उस चीज को फाउंड करोगे कि यस यहाँ पे मिस्टेक है ना, ये चीज मेरे पास नहीं आई है। अगर आप लॉयर हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लीगली क्या मैटर, राइट? यहाँ पे क्या पॉइंट, जगह को देख के पता कर लोगे कि यहाँ एक्चुअल क्या काम हुआ है, गलत हुआ है या सही हुआ। गाड़ी का जो मैकेनिक है वो भी डॉक्टर के पास होगे तो डॉक्टर बिल्कुल आपको क्लियर बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो एवरीवन जिस चीज को बताएगा और आप उसे लाइफ में ऑलवेज आपको वो क्या कर सके, गाइड कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको ऑलवेज हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। तो सपोर्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि deepen your understanding, always improve your understanding, always improve your subject knowledge, always spend time with yourself, right? Now make decision making, फिर आप उसे अपने आप बनाइए कि यस आपको कैसे रहना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, कितना टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेक एक्शन, डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डिसीजन को फॉलो करना, उस एक्शन लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने डिसाइड किया कि आज मैं हाथ भी नहीं लगाया, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिसीजन, राइट? सो वॉट एवर द डिसीजन यू डिसाइड, so you implement on own. Last, belief
डिब्रीफ मीन्स कि शॉर्ट में करने की कोशिश करिए, स्पीड बढ़ाइए, स्मार्ट वर्क करिए। सो ऑलवेज, क्योंकि क्या है, स्मार्ट वर्क जितना आप अच्छा करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। स्पीड जितना आपके पास होगा काम का उतना आपके लिए अच्छा है ना। सो स्मार्ट वर्क इज हेल्प यू टू इम्प्रूव your own decision making, right? So this is the first part of unit 4 of decision making. Anyone want to ask any question? Yes, am I audible now? Hello? Yes, ma'am, but the screen is not visible to us. Hello? Yes, Now? yes, audible, ma'am. Yeah. Okay. Okay. So this first decision making, and tomorrow we'll see the next part. Okay, so today we have seen the process of decision making and how we make it. Got it? Anyone want to ask any question? Okay then, see you tomorrow. Bye bye.